Good morning, students. Topic for today is effective qualities of board members. Board members may also be called as board of directors, which are playing a very important role in formulating overall success or failures of an organization. Directors may direct or it can form a script which will lead to the organization's success or the failure. We can say the future of an organization may depends upon how the directors may mold their organizations through its vision and mission. So there are certain qualities which may differentiate board members with other people. When we compare it with the common persons, board of directors may consist of certain characteristics which may differentiate it with other one. So in this question, we are going to study what are the effective qualities of an board members, irrespective of an organizations, irrespective of different forms of organizations available. But the directors may possess or should possess certain characteristics for an effective eligibility criteria. First quality a board member should consist of, that is a passion. So every board member must have deep interest in mission of the organizations, and all the members must have a common goal to achieve. So passion means it is at every day when a person gets up, then whatever the plan he has formed, or whatever the objectives which he wants to achieve in its entire life, right? So what things it is going to make it encouraging at each and every day, because we believe that at every day one's require a good motivations to start a day. Same thing is for an organizations, to show them a vision, to show them a proper mission, how an organization should lead to a path of success. That depends upon how passionate their directors are, right? So passion here means it's that it should have a deep understanding of the subject. It should have a deep understanding of organization's functions. It should have a deep understanding of or deep knowledge about the areas, right, where organizations may functions. It may happen that an organization's directors may possess certain skills, may possess specialization, expertise in certain areas. So that areas should be again enhanced, or it should be used for the betterment of a organization's success, right? So passion means that is the continued motivations to drive towards excellence. Example, right? Passionate means how much energy the director is spending on upliftment of an organization's success, right? So passionate means it is an energy which is making an organization to move towards a better future. So every board member should be passionate. Passionate means they should have a desire, right? This is my organization's, and I have to work for this organization's success. I have to make everything, right? That should be justifiable. I should take a decisions which should uplift the overall stakeholders of an organization. So passion is very important, because passion means interest, passion means desire, right, to fulfill the mission and the objectives of an organization. Within an organization, we can say there should be several peoples who possess such kind of passion, right? Some may be very much interested in financial field, right? Some directors may have a specialization in finance, so he should be using that skills for a better financial structure within an organization. A person may be good in areas of marketing, right? A director, so he should work towards that,
right? So every directors may certain skills may be there that may be used for the betterment of an organization, right? So passion is very important. There are several examples in our corporate world that we can give, like for example Ratan Tata, right? So they at that particular time, these peoples were having an effective knowledge or the deep understanding about different fields, right? So board of directors means they are those people who will be sitting at the prime positions and whose decisions are going to affect the overall future of an organization, a single decision, right? So there will be several committees which are formed beyond and directors, right? Directors under director, we can say there may be several other committees which are formed for the better enhancement of an organization's future. So passion means how and directors may bind an organization, right? So this will create a passion to realize the expected targets for the enterprise, right? Example, there were several examples within our corporate world, like Sundar Pichai was an Indian, right? Right now he heads at the prime positions of Google, but at one particular time as a board member, right? What he does, right? Or as a chairman, what are his abilities, right? His abilities is he himself is knowledgeable and he is having a deep knowledge or deep, we can say, desire in the field of IT, information technology, or in the field of computers. So he possesses an interest, right? And he possesses a business where his interest plus business may lead to a new success, right? So director must be passionate at every day. He will be able to provide a motivations to an organization, राइट? एक जैसी सिचुएशन हर बार नहीं होती है, राइट? बट एक पैशनेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होनी चाहिए कि पर डे हाउ मच ही शुड बी मोटिवेटिंग इट्स एंटायर different committees or the peoples who lie below and directors. So responsibility of director is very much vast, right? Its single decision is going to affect the entire organization's future. तो ऐसे डायरेक्टर्स की ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड है, राइट? कई लोग देखे हैं कि सेल्फ मोटिवेटेड मीन्स उनको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, वो लोगों को मोटिवेट करते हैं थ्रू देयर एबिलिटीज़, राइट? कई ऐसे आदमी होंगे जिससे आप मिलोगे तो हर टाइम यू विल फील दैट यू आर मोटिवेटेड, देयर इज एन एनर्जी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी, इतना पैसन होता है, राइट? एक अंदर से ऐसे जुड़ा हो जाता है, देन यू कैन बिकम सक्सेसफुल. आप कोई भी फील्ड में जाओ, राइट? अगर पैसन नहीं है, वो फील्ड के लिए पैसन नहीं है, आपका डिज़ायर है नहीं, आप फोर्सफुली काम कर रहे हो कोई चीज़, देन यू आर नॉट गोइंग टू अचीव द सक्सेस. मगर कोई एक पर्टिकुलर फील्ड को आपने डीपली, राइट, यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड एंड यू कैन नॉट लिव विदाउट दैट, देन यू कैन बिकम सक्सेस. आप एक पैसन है आप में, अंदर से डिजायर है आप, देन यू आर गोइंग टू फुलफिल दोज ड्रीम्स विच यू हैव मेड, राइट? सो दिस थिंग्स should be there for the directors, because he is going to make the entire story in an implementing form, right? So passion of a directors is very much responsible for company's future, right? So that is the first characteristics of a director. Second characteristics a director may possess, or the board members should possess, or the board of directors should possess, its vision. Visionary. A director should be visionary,
विजनरी मीन्स कि वो दूर दृष्टि, मतलब फ्यूचर प्लान्स, समय की नज़ाकत को समझने वाला होना चाहिए। उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज माय कंपनी इज मेकिंग ए कंप्यूटर, तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ मेंबर्स की ये कंटिन्यूअस अपडेट रहना चाहिए कि मार्केट में और कौन से नए इन्वेंशन हो सकते इन द फील्ड ऑफ ए कंप्यूटर। आप जब टेक्नोलॉजी को डेली बेसिस पे अपडेट नहीं करोगे, देन योर टेक्नोलॉजी विल बी वेरी मच ओल्डर। सो डे बाय डे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर हैपनिंग। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा चेंज होती जा रही है, नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी आती जा रही है। तो अगर मैं कोई ऐसी कंपनी चला रहा हूँ जो कंप्यूटर्स बनाती हो, तो ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये रहेगी कि आई शुड कंटिन्यूसली थिंक ऑफ इनोवेशंस इन माय फील्ड, तब जाके ऑर्गेनाइजेशंस विल हैव ए बेटर फ्यूचर, राइट। अभी मैं 4G मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, पर मेरी विज़न यही होना चाहिए कि 5G 6G जो भी नई टेक्नोलॉजी है वो फर्स्ट हमारी कंपनी होनी चाहिए जिनके पास वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। आई शुड बी विजनरी, आई शुड थिंक दैट मैं आज कोई डिसीजन ले रहा हूँ, द डिसीजन विच आई एम टेकिंग टुडे विल हैव ए ग्रेटर इम्पैक्ट इन 20 years 30 years। So whether my decisions which I am taking it's 100% accurate or it is for the future or not। हमको आज का सोच के नहीं चलना है, हमको आज से आने वाले 10 20 साल 30 साल कंपनी किस डायरेक्शन में जाएगी उसका हमको डिसीजन लेना है अगर, तो वी शुड बी विजनरी, हम दूर की सोचने वाले होने चाहिए, राइट। मेरी कंपनीज आने वाले 20 साल में मेरी कंपनीज को कहाँ देखना चाहता हूँ, या हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने के लिए। सो विजन कम्स थ्रू गुड पैशन। Passionate members of the organizations will create a vision to realize the set of goals of the organizations and will try to achieve it by working with cooperations of every member of the board। I am hearing several news, मैं देखता रहता हूँ, उसमें देखा है कि a story of a लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ महिला गृह उद्योग द्वारा स्टार्ट किया गया था। जब स्टार्टिंग पॉइंट पे ये कंपनीज जो सेटअप हो रही थी, मतलब ऐसे ग्रुप सेटअप हो रहा था औरतों का, 4-5 औरतें मिलके 80 रुपये से ये बिजनेस स्टार्ट करके आज करोड़ों रुपए के टर्नओवर पे ये कंपनी पहुंच गई है। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि जितनी भी विमेंस थी उसमें सब की सब विजनरी थी। इसका मतलब उन्होंने सोचा कि हम बहुत पैशनेट हैं, हमको यही काम करना है और ये काम करना है, बहुत ही बेहतर करना है, राइट। आई वुड लाइक टू टेल ऑल द स्टूडेंट्स ऑल्सो इन योर लाइफ, इन योर फ्यूचर, राइट। आपके पास विजन नहीं होगा देन यू आर नॉट गोइंग टू हैव ए बेटर फ्यूचर, राइट। जब आपको यही नहीं मालूम होगा व्हाट यू हैव टू डू, देन यू आर नेवर गोइंग टू गेट ए बेटर सक्सेस। जब सब क्लियर है, माई विजन इज वेरी क्लियर, मैं अपने आप को 20 साल में यहाँ देखना चाहता हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स विच में कम ऑन द डेली बेसिस। तभी मैंने बोला कि पैशनेट, पैशनेट मतलब एग्जाम्पल के तौर पे इफ आई विल गिव, राइट, देन वन थिंग आई एम वेरी मच पैशनेट अबाउट फिटनेस, राइट। इफ आई एम continuously thinking about fitness, none other than that, if I am having a strong desire to make my body perfect, then it's not difficult
It requires a passion, it requires a time, right? So everybody, right, if doing certain kinds of work, if you are doesn't, if you doesn't have a passion, if you doesn't have a vision, आपके पास विजन नहीं है कि मुझे करना क्या है, मुझे जॉब करनी है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे करना क्या है, आई डस नॉट नो, राइट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनके पास कोई विजन नहीं है, मतलब जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहे वो हो रहे, आगे की नहीं सोच रहे कि आगे इन फ्यूचर क्या डिमांड रहने वाली है, राइट? क्या चेंजेस करना है हमको, हम क्या अपनी कंपनीज में चेंजेस लाए, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, then that company is never going to grow. That company will grow if the directors will have a vision कि हमको इतने साल में करना क्या है, कैसे करना है, right? What resources we will require. जब इसकी समझ आ जाएगी, then definitely that company is going to become successful. So that is the second characteristics of an effective board members. Third characteristics is leadership. So for realizing the mission of the organizations, members must have directions to achieve the same, and for the effective direction, members must have leadership qualities so that various committees that have been constituted for the same can coordinate with each other and goals are feasible. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ये भी क्वालिटीज होनी चाहिए कि उनमें लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए. अब हम एक सिंपल डिफरेंस अगर हमको समझना है कि मैनेजर और लीडर में क्या डिफरेंस होता है. एक मैनेजर होता है जिनको एक सीमित काम दिया जाता है, उसी सीमित काम के द्वारा दायरे में उनको काम करना होता है. मैनेजर्स के साथ जितने भी लोग काम करते हैं वो या तो वहाँ जॉब कर रहे हैं अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, अपनी अंदर से उनकी इच्छा हो कि ना हो, वो मैनेजर्स के अंडर में काम करते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस ओबे करते हैं. हो सकता है उसमें से मैनी पीपल विल नॉट बी very much interested to do his work, but for his livelihood he is doing that work, right? But if we say about leader, then leader is a person which is having an objective which is similar to the people. हम एग्जाम्पल के तौर पे ले कि सपोज द पॉलिटिशियन एक लीडर है, अच्छा लीडर है, तो अच्छा लीडर है उसके साथ लोग इसलिए जुड़ना चाहते हैं बिकॉज ही इज़ ए वेरी गुड पर्सन हु इज़ हैविंग ए लीडरशिप स्किल. उनके पास ऐसी स्किल है, लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं. एग्जाम्पल के तौर पे लीडर्स जो अच्छे लीडर हों, रतन टाटा फॉर एग्जाम्पल, रतन टाटा फॉर एग्जाम्पल, टाटा ग्रुप एट प्रेजेंट we can say there is no person in entire Tata who is that much visionary and who is having such qualities of leadership. टाटा के पास एक लीडरशिप क्वालिटीज थी. सेम एग्जाम्पल से मुकेश अंबानी के पास भी आज की डेट में एक लीडरशिप स्किल्स है, राइट? जो अपनी कंपनीज को बेटर लीड कर सकते हो. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, राइट, where we can say how a person is effectively leading a company, right? So effective leader should be having leadership qualities. आती है लीडरशिप स्टाइल होती है. कई लीडर्स ऐसे होते हैं जो कि यही मानते हैं कि सिर्फ मैं जो बोलूँ वैसा ही होना चाहिए. कई लीडर्स ऐसे होते हैं जो कि लोगों की भी सुनते हैं और दे ऑल्सो टेल देयर आइडियाज़. उसमें से कॉमन जो अच्छा होगा वो लोग ले लेंगे. कई लीडर्स ऐसे होते हैं जो पहले डिस्कशन करते हैं, उसके बाद जो भी सबने डिस्कशन किया उसमें से कोई आंसर्स या डिसीजन लेते. तो लीडरशिप स्टाइल
एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज इंटीग्रिटी। मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी इज कोऑर्डिनेशन। फॉर फुलफिलिंग द responsibility for the organization, all the board members should work with integrity. इंटीग्रिटी मतलब जब एक साथ राइट एक मिल के काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशंस का फ्यूचर ज़्यादा अच्छा है। उसका एक सिंपल एग्जांपल्स हम लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल्स आप मैच करो या ना करो, बट मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, एक तरह से देखा जाए जब ये रिलायंस का बंटवारा नहीं हुआ था, स्प्लिट नहीं हुई थी, तब रिलायंस जो थी उसको हम एग्जांपल लेंगे कि एक बहुत ही राइट डायरेक्शंस में रिलायंस मूव कर रही थी। जब स्प्लिट हुई दोनों भाइयों में, तो मुकेश अंबानी की कंपनीज, या मुकेश अंबानी कह सकते हैं, उनमें अच्छी इतनी लीडरशिप स्किल थी, उन्होंने मार्केट ट्रेंड को जाना और कंपनी को अच्छा डायरेक्शन दिया। अगर छोटा भाई है उसका या कहोगे फ्यूचर खराब है, या उसकी वॉट एवर यू में से यस लूज्ड एवरी मनी। आज ऐसी हालत हो गई अनिल अंबानी की, उसके पास एक राइट उनके वो रोड पे आ गए, सिंपल। ना कोई वो अमीर आदमी है आज की डेट में, एक कॉमन मैन की तरह हो गए, क्योंकि उनके पास कोई अब पैसा ही नहीं है, कोई एसेट नहीं है, राइट। एक समय था जहाँ पे एशिया का रिचेस्ट मैन माना जाता था अनिल अंबानी, आज की डेट पे उसके पास कुछ पैसा नहीं है। तो ये कारण क्या है कि लीडर, उनके पास ऐसी लीडरशिप स्किल नहीं थी, राइट। Yeah, like Mukesh Ambani, he was not that much profound, so that he was not able to lead the company for a better future. Right? सीधा सीधा हमारे पास एग्जाम्पल है, टू अंबानीज। एक अंबानीज कहाँ से कहाँ है, एक अंबानीज तो रोड पे आ गए, राइट। तो कोऑर्डिनेशंस का मतलब होता है कि जब यूनिटी नहीं है, राइट, तालमेल नहीं है, तो वो ये ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो या तो बायस डिसीजन होंगे या 100% उसमें एक्यूरेसी नहीं रहेगी, राइट। मेरे कंपनी में 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके कोई डिसीजन ले, तो वो डिसीजन जो है वो डिसीजन को हम इफेक्टिव बोलेंगे। या कोई भी डिसीजन है कि वो बिना किसी से पूछे लिया गया अगर, तो हो सकता है कि उसमें सक्सेस ना मिले। तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेशन जब तालमेल है, राइट। इफ देर इज एन ट्यूनिंग, कई बार हम कहते हैं कि अच्छी ट्यूनिंग है, ट्यूनिंग मीन्स कि ही अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज, right, very easily. So all the board of directors, they have very much good tuning, they make a very good decisions when they are in a unity. तो ये इंटीग्रिटी जरूरी है, it's very much necessary, because this integrity is going to make an organization more successful, right. So that is the fourth point. 4-point characteristics. Fifth characteristics is knowledge. Board of directors consist of various members. It is because one members may not have diversified knowledge of every aspect. So मैंने जैसे बताया कि हर एक डायरेक्टर जो है उसके पास कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। ऐसा नहीं है कि मैं मार्केटिंग के बारे में अच्छा जानता हूँ तो मैं फाइनेंस के बारे में भी अच्छा जानूंगा, ऐसा नहीं है। मुझे मार्केटिंग का A to Z आता है, बट फाइनेंस का A to Z नहीं आता है, राइट। आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम परफेक्ट इन वन फील्ड, बट आई मे नॉट बी परफेक्ट इन एवरी फील्ड, राइट। वन मे बी अ गुड डांसर, बट वन मे नॉट बी अ गुड सिंगर। सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सबके पास नहीं दी जाती है, सारा टैलेंट सबके पास नहीं होता है। तो हर एक डायरेक्टर जो है उसकी एक कोई ना कोई खासियत है, राइट। तो यही खासियत जो है कि 10 डायरेक्टर है तो 10 में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जिसके पास जो नॉलेज है वो पर्टिकुलर फंक्शंस, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत स्ट्रांग होगा, कोई मार्केटिंग में बहुत स्ट्रांग होगा, कोई फाइनेंस में बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे करके हम ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा अच्छे से बेहतर से हम
सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं, राइट. सो दैट इज नॉलेज. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉलेजेबल मतलब दे शुड बी हैविंग ए स्किल. एग्जाम्पल के गूगल है, तो गूगल में सुंदर पिचाई भी एक आईआईटी पास आउट स्टूडेंट है, जो कि राइट वेल राइट रेप्यूटेड कॉलेज ऑफ इंडिया और द एशिया आईआईटीज में से पढ़े हुए हैं. फिर बाद में उन्होंने फॉरेन जाके पढ़ाई की, अपना मास्टर्स एमटेक. पर कहने का मतलब है कि गूगल, मेरा बैकग्राउंड क्या है कि मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ, तो मैं आईटी इंजीनियर हूँ तो मैं आईटी कंपनीज का चेयरमैन बन गया, तो मुझ में नॉलेज है, राइट. मैं कोई कॉलेज का प्रोफेसर हूँ तो कॉलेज का प्रिंसिपल बन सकता हूँ, क्योंकि वही चीज़ कॉलेज में वो चीज़ मेरे को एक्सपीरियंस होगी. आई एम एक्सपीरियंस. सो नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी डायरेक्टर शुड हैव ए स्पेसिफिक नॉलेज and that knowledge should be used for better enhancement of an organization. Sixth point है, that is diligence. Board members should have dedications and commitment to fulfilling organizational goals. Diligence का मतलब होता है कि dedications कितना है, commitment कितना टाइम दे सकता है. टाइम मतलब एक प्रोडक्टिव टाइम. आप जितने टाइम ऑर्गेनाइजेशंस में हो तो आप कितना कमिटेडली ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो. मतलब कोई एक सिंपल एग्जांपल देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अगर नुकसान हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, अगर कोई एम्प्लॉय या कोई डायरेक्टर समझे कि दिस इज़ माय प्रॉब्लम, राइट, बिकॉज दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ माइन, राइट, एवरीथिंग विच इज़ आई एम गोइंग टू लूज दैट इज़ माई लॉस. अगर ये समझने लगे देन द एंटायर कंपनी विल बी राइट, जब ऐसी भावना आ जाएगी तब एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे फ्यूचर पे ग्रो कर सकता है. डिलीजेंस, कमिटमेंट कितना है, डेडिकेशन कितना है, राइट. आपके पास डेडिकेशन नहीं है, आप डेडिकेटेड नहीं हो, देन यू कैन नॉट बेटर लीड योर ऑर्गेनाइजेशन टू ए बेटर फ्यूचर, राइट. सो डिलीजेंस, कमिटमेंट, राइट. एग्जाम्पल्स, एक इसके पीछे एक अच्छा एग्जाम्पल्स ले रतन टाटा. व्हेन ही वाज एक्वायरिंग आर्सलर और टेस्को, राइट, टेस्को वाज एक्वायरिंग एंड आयरन एंड स्टील कंपनीज, राइट, एक्विजिशन वाज डन. तो जब एक्विजिशन हो रहा था उस समय पे टाटा हैज entirely learned, and the meeting lasted for 3 to 4 days. So Tata has attended that meeting, that hours, 72 hours, and has done the entire deal. तो कोई भी डीलिंग, कोई भी एक्विजिशन जब हो रही थी तब रतन टाटा एक खुद बैठ के उन्होंने वो डिसीजन लिया था. तो कहने का मतलब यही है कि कमिटमेंट कितना है, राइट, डेडिकेशंस कितना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेवंथ पॉइंट इज कोलेजियलिटी. मीन्स every members of the board should possess respectable attitude towards colleagues, right. Collegiality means it is talking about the colleague and its relationship कैसी होनी चाहिए. तो रिलेशनशिप ये होनी चाहिए कि एवरीवन शुड बी रिस्पेक्टेड विद देयर वर्क. जो जिसका प्रोफाइल है, दैट वर्क शुड बी रिस्पेक्टेड. एंड कलीग, जो कि आपके साथ काम कर रहे हैं, तो उनको आप अगर अच्छे से बुलाते हो, रिस्पेक्ट करते हो, then it is a better sign that you are in the right path, right. So every member of board should possess respectable attitude towards colleagues. उनके पास उनका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल होना चाहिए. रिस्पेक्टेबल मीन्स कि यू गिव रिस्पेक्ट टू एवरीबडी,
right? So that is collegiality. Eighth and the last point is discretion. What is discretion? Every board member should maintain confidentiality of board meetings and discussions and speak with one voice when representing the business to the community. ये बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है. डिस्क्रिशन, ये हमारी लाइफ में भी हम यूज़ कर सकते हो. मतलब कि एक सिंपल एग्जांपल है, राइट? चाहे इंडिया में कितने भी ज़्यादा डिफरेंसेस हो, हम मान सकते हैं कि कई कम्युनिटीज़ के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं, राइट? क्योंकि डिफरेंट रिलीजन्स के लोग इंडिया में रहते हैं. पर जब एक चीज़ होती है, जब हमारा कोई भी दूसरे देश से अगर युद्ध होता है, वॉर होता है, तो सारा इंडिया एक साथ मिल के खड़ा हो जाता है एंड इट वर्क्स टूवर्ड्स दैट. उनके अंदर ये एक देश की भावना आ जाती है. तो डिलीजेंस का मतलब होता है डिलीजेंस की, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं विद इन अवर डिस्कशंस एंड ऑल दैट, तो वो डिस्कशंस के कारण प्रॉब्लम्स जो हो रहे हैं वो हम ही सॉल्व करेंगे उसको, पर बाहर उसका हम मार्केटिंग नहीं करेंगे. चाहे हमारी कंपनीज में कितने भी डिफरेंसेस है, उसको सॉर्ट इट आउट कर देंगे, राइट? क्योंकि it is peculiar that every organizations which will be having a board of directors, there will be certain differences, right? हो सकता है कि differences रहें, ज़्यादा बड़े नहीं, differences को वही solve कर सकते हैं हम, we can do that. But what is interesting क्या है? What is the interesting thing? Interesting thing is that every board member should maintain confidentiality. Confidentiality है, right? अंदर क्या हुआ है, that is not the matter to discuss करने के लिए नहीं है. But जब कोई प्रॉब्लम्स आता है towards organization, then we stand united and we stay united to achieve those objectives, right? So that is diligence. So these are the effective characteristics of a board of directors, and these characteristics will lead to the better future for the organizations. Thank you.